بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ تقریباً منفی پہ چلا گیا تھا، اور پھر کووڈ سے پہلے ہی معاشی بدحالی جو ہے اس کا پاکستان کو سامنا تھا، بے روزگاری کا پاکستانیوں کو سامنا تھا، پھر کووڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی سے پسی ہوئی جو عوام ہے اس کے لیے دو بم جو ہیں وہ اور گرائے گئے ہیں مہنگائی کی صورت میں۔ اور ایک جو ہے وہ ہے 2 روپے 70 پیسے جو پیٹرول ہے اس کی پرائز بڑھائی گئی ہے، اور 1 روپے 95 پیسے جو پاور ٹیرف ہے پر یونٹ 1 روپے 95 پیسے بجلی کا بم جو ہے وہ بھی عوام پر گرا دیا گیا ہے۔ انور مسعود صاحب کے اشعار مجھے پروگرام کی اوپننگ میں یاد آتے ہیں، جو حالت اس وقت پاکستانیوں کی ہو گئی ہے کہ جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلے سے بڑھ کے تھی، جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلے سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کرب ناک پہ میں تل ملا اٹھا، پانی رسوئی یعنی کہ کچن، پانی رسوئی گیس کا بجلی کا فون کا بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بل بلا اٹھا۔ یہی کیفیت جو ہے وہ اس وقت پاکستانیوں کی ہے۔ ہم نے اس سے جڑے ہوئے جو مختلف کردار ہیں ان کو اپنے اسٹوڈیوز میں جمع کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیٹرول جن کی قیمت ابھی 3.25 روپے بڑھی ہے۔ یار دنیا اذیت میں ہے اور آپ ہنس رہے ہیں۔ میں نہ ہسا تو کون ہسے گا؟ تسی ایڈی وڈی گڈی رکھی ہے، میں نہ ہوواں تے تہاڈی گڈی کیویں چلے؟ سائیکل تے مشارہ پڑھن جاؤ گے، جب پہنچو گے مشارہ ختم ہو جائے گا۔ میں ماں پٹرول، میں نہ ہوواں نا تے تسی کل گڈیاں سفر کرو گے؟ نہیں، کھوتیاں تے کھچراں تے اونٹھاں تے سفر کرو گے، تانوں پتہ لگے گا قصور کنے دناں چ پہنچے ہو۔ میں پٹرول ہاں۔ اور آپ کون ہیں جی؟ میں وہ ہوں جس کی ہر مہینے قسطیں کروانے جاتے ہو ترلے کر کے۔ مطلب بجلی؟ ہاں بجلی، پہچان لیا کیوں پہچانا بھلا؟ قسطوں کی وجہ سے، بچی نہیں ہوں میں۔ زندگی میں کبھی سنا ہے کہ کسی نے 150 روپے کی قسط کروائی ہو؟ جناب نے کروائی ہے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ مشاعرے خراب کراتی ہوں۔ نہیں مطلب لوگوں کی جو کم آمدنی والے جو لوگ ہیں ان کا آپ مذاق اڑا رہی ہیں۔ جب کسی کی آمدنی صرف 6,000 7,000 روپے ہوگی تو وہ 150 کی بھی بیچارہ قسط ہی کرانا چاہے گا نا۔ کم آمدنی تھوڑے عرصے کے لیے لی تھی، اس کے بعد اتنے موٹے لفافے لیتے ہو آپ۔ پھر بھی قسطیں 500 آ گیا، اس کی بھی قسط ہے کوئی طریقہ؟ اور خبردار جو مجھ پہ تنقید کی، یاد رکھیو کہ جب بھی تیرا ہٹ مشاعرہ ہوگا بیچ میں اٹھ کے چلی جاؤں گی۔ ڈھونڈتے رہو گے پھر ساتھی شاعرہ کو، ارے بھائی ہاتھ پکڑیے گا مجھے باہر تک چھوڑ دیں۔ اچھا جی، پیٹرول کے ساتھ اور بجلی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے جو بے شمار ترجمان ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 40 سے زیادہ اس وقت ترجمان ہیں، ان میں سے ایک ترجمان جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ السلام علیکم۔ استغفر اللہ، 40 ترجمان! یہ ترجمان ہے کہ چوچے ہیں؟ گورنمنٹ میں اتنے محکمے نہیں ہیں جتنے ترجمان رکھ لیے۔ اتنے ترجمان کیا کرو گے؟ آپس میں کہیں بھول بھال نہیں جاتے؟ بڑا رولا پا رہی ہے۔ بجلی ہوں میں، جس کا بل تو نے کبھی دینا مناسب نہیں سمجھا معاف کروا لیتے ہو، سب جانتی ہوں میں۔ اور میں بجلی کے بل کیوں دوں؟ گورنمنٹ کے کھاتے تے پلٹنے ہیں۔ شریف آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی، آپ کا نام؟ جی میرا نام ارباز گل۔ آپ شہباز گل صاحب کے بھائی ہیں؟ نہیں کدی بھی نہیں، پاگل ہے میں ادھر پڑھا ہوگا۔ ترجمان کدی بھی کسی کا پڑھا نہیں ہوتا۔ جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں ان کے آپس میں گلے شکوے کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ جتنے اتنے ترجمان ہوں گے کھچڑی تے پکے گی، اور میں تو انہوں نے منہ نہیں لاندہ نہ وہ من لاندے۔ ترجمان ہے وہ کہتے تو سنے نہیں، تو ترجمان ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ لاہور والا قوت بھائی، علامہ اقبال صاحب کی روح تڑپ گئی ہوگی۔ شاید تسی من کیسی 1 to 1 تہاڈا میرا انٹرویو ہے، تسی کہڑے عجیب و غریب جے فضول جے لوگ بلا لے۔ تم لوگوں کی وجہ سے عوام ہمیں گالیاں دے رہی ہے، بولے نا ہم لوگ۔ انہاں نوں گل کر رہے ہو، میں ہوں وہاں سب تو اتے کی پٹرول ہے، پٹرول پٹرول ہے؟ اور تیرے ذہن چ کی ہے؟ کھانے خراب ہوا ہے۔ اوریجنل ہے، اوریجنل اے کلر ہے۔ اوے یار اوریجنل ہوئے یا نقلی ہوئے، سن پٹرول دی ٹینشن کوئی نہیں۔ ٹینکیاں ساڑیاں فل نے۔ اچھا، انیاں فل نے، ساڑی گڈیاں تے ڈیلے باہر آئے نے۔ آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ لوگ آپ سے، حکومت کے ترجمانوں سے، عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی انکم تو ہے نہیں، حالت اتنی خراب ہے، معیشت اتنی خراب ہے، اور پیٹرول آپ نے 3 روپے بڑھا دیا، تقریباً بجلی جو ہے آپ نے 2 روپے یونٹ بڑھا دی ہے۔ اگر 200 یونٹ کو استعمال کرتا ہے 600-700 روپے اس کا بل زیادہ آئے گا، 7,000 روپے اگر اس کی انکم ہے تو وہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ ارے یونٹ استعمال کیوں کرو تم لوگ؟ اگر تمہاری اتنی انکم نہیں ہے تو بتیاں بجھا کے سو جاؤ۔ ایماندار وزیر اعظم تانوں پچ نہیں رہا، اے پچھلے جڑے تسی بھگتے رہے تانوں پتہ نہیں۔ او بھائی بات یہ ہے گل صاحب کہ ایماندار تو ساری دنیا ان کو ابھی تک مانتی ہے کہ وہ ایماندار ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کچھ کریں بھی تو۔ کی کرن؟ ایماندار بندہ کچھ نہیں کرتا ہوتا۔ ایماندار بندے کو کچھ توقع رکھو گا کچھ کرے گا۔ ایماندار آدمی یا ایمانداری کر سکتا ہے یا دکانداری کر سکتا ہے۔ ایک منٹ کیا کہا آپ نے؟ چھٹ دو، کچھ گلا منہ نکل جاتی نہیں ابھی آپ نے کیا کہا؟ ایماندار آدمی یا ایمانداری کر سکتا ہے یا دکانداری کر سکتا ہے۔
इससे क्या मुराद है आपकी? ਉਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ नहीं, मतलब इमरान खान साहब का जो वही प्राइम मिनिस्टर है ना, और उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि वो ईमानदार है, मगर दुकानदारी से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अरे मियाँ मैं बता देती हूँ आपको, इनके गेट के बाहर दोपहर 1 बजे तक जो एक्स्ट्रा लाइटें जल रही है ना, वो दुकानदारी की वजह से। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखो जो पिछले सन जी। वो दुकानदारी भी करते सन, ईमानदारी भी करते सन। उन पे तो देखे ना, इल्जाम ही यही था कि गवर्नमेंट के साथ साथ वो चूंकि तिजारत भी करते हैं और दोनों चीजें जो है वो मिक्स हो जाती थी आपस में, जी, जी। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी वजह से बहुत नुकसान होता था। बल्कि जब मियां फैमिली आखिरी मरतबा इक़्तिदार में आई है मुशर्रफ साहब के जाने के बाद, तो मजीद निजामी साहब ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि आप अपने कारोबार अब बंद कर दें, यानी कि अपनी दुकानदारियां बंद कर दें, सिर्फ हुक्मरानी करें, लोगों की खिदमत करें, सियासत करें, क्योंकि सियासत और दुकानदारियां साथ साथ नहीं चल सकती हैं। हशर के बारे कौन सोचता है? वैसे पॉइंट तो अच्छा है, तुझे पीटीआई दे देनी। पीटीआई तो ये कहती है कि सारे बुरे काम जो हैं वो साबका हुकूमत के हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बहरहाल जब वो तिजारत भी करते थे, कारोबार भी करते थे, इंडस्ट्रीज भी लगाते थे और सियासत भी करते थे, तो उससे बहरहाल एक नुकसान तो हो रहा था ना, वो कोई आइडियल मॉडल तो नहीं था। इसी वजह से पब्लिक ने आपको वोट दिए थे। वो कहते हैं वो वाला मॉडल वापस आ जाए। हुण तुसीं मैनूं नून लिख दे लग यार आपके तर्जुमानों में ना एक ये भी बड़ा मसला है, इस गवर्नमेंट में ये बड़ा मसला है। कोई बात आप कोई तनकीद करें, कोई राह सुझाने की कोशिश करें, कोई हक की बात करें, फौरन आप पे इल्जाम लगना शुरू हो जाता है कि आप किसी की सपोर्ट कर रहे हैं, या आप किसी से लिफाफा लेते हैं, या आप किसी के हक ओ भाई हम सिर्फ पाकिस्तान के हक में हैं। जो पाकिस्तान के हक में अच्छी चीज करता है उसको सपोर्ट करते हैं, जो खिलाफ जारी होती है उसके ऊपर तनकीद करते हैं। ना नून के हैं, ना पीटीआई के हैं, ना पीपल्स पार्टी के हैं, ना एस्टैब्लिशमेंट के हैं, सिर्फ पाकिस्तान के हैं। ओहो शाह जी मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। मैं भी पाकिस्तानी हाँ, भाਵੇਂ मेरा पासपोर्ट बाहर दे मुल्क दा है। किस मुल्क का पासपोर्ट है आपका? मेरा यूके दा है। अच्छा एक बात बताएं, जब ये मुल्क आप लोगों को इतना मान देता है, इतनी नौकरियां देता है, इतनी पावर, इतनी पोजीशंस देता है, तो फिर आपको यूके के पासपोर्ट की जरूरत क्या रह जाती इनको है? सिर्फ रेड टाई और रेड पासपोर्ट चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है, अच्छा मौसम बड़ा हाल है, ताज़ियां चीज़ां फ्रेश, हर बंदा उत्थे इशारे ते खलोता होंदा है, कुत्ता ही नहीं पैंदा। 3 घंटे मैं इस आस ते खलोता रहा शौक च कुत्ता मन पवे, वट्टा भी मारिया नहीं पिया। कैसा कूल डाउन कुत्ता उत्थे साडे इत्थे तुसीं गड्डी 'च बैठे हो, गड्डी 'च वड़न दी कोशिश कर रहे हो। जिस मुल्क दा पेट्रोल ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਉੱਠ ਕੇ। मैं ਹਾਂ तेरा मत्था ਹਾਂ मैं गड्डी साड़ देंगा, ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਾਂਗਾ। मैं कुकड़ ते बह के सफर कर लांगा, ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੈਂ ਯਰਕਾਨ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਉਹ ਨਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐ ਗੱਲ ਦੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਚੁੰਮ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਸੜਵਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੀ जी जी जी, ਇਹ ये बिजली है। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਪ੍ਰੋ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, मेरे पे तारीफ को नहीं, मैं तेरे दस्ता तो बाहर निकल, मैं तेरे इट मारनी। नहीं आप बिल्कुल मुझसे गलती। असल में मैं पहले इनका तारुफ कराना चाह रहा था। मैं चाह रहा था जिन चीजों ने आपको तंग किया हुआ है आवाम को, पहले उनका तारुफ करा दूं। कोई आवाम इट जोर ना फड़ी कि मेरा सिर ना पाड़ दी। पहले मैंने पेट्रोल का तारुफ कराया जिसने जिंदगी आजाद की हुई है, फिर मैंने बिजली का तारुफ कराया, 2 रुपए यानी कि बिजली बढ़ गई है। तो उसके बाद फिर मैंने पीटीआई के तर्जुमान का तारुफ कराया जिनसे हम सब सवाल करेंगे। कोई नहीं तू सारे को कोजे नहीं ऐसा नहीं। मैं मैं आपको नाज़रीन हमारे साथ अवाम भी मौजूद है, आप तशरीफ रखिए। एडी गंजी आवाम पहली रही। क्यों बैठा है ओए तुसी सारे इको कोजे एवें टीवी ते आके बैठ जने हम अवाम के साथ हैं, अवाम ये कर रही है, हुकूमत जुल्म कर रही है। हुकूमत जो जुल्म नहीं कर रही वो सही कर रही है। साडे नाल ये क्या कर? ओए अवाम ने इट फड़ी है, मीडिया दा गुस्लखाना ते नहीं बन रहा। मेरा हाल होया ना, मैं नहीं तो छड़ांगा। आपके दर्द का एहसास अगर मीडिया को नहीं होगा, केड़े मीडिया को नहीं होगा? ओए मुंह बना के गल्ला ना करो ए, और तुसी झूठे हो, ओ झूठे हो पापे हो। नहीं तो हम तो आपकी आवाज हुकूमत तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छी शरी अवाम पखी है, तुसी खूब निशानदेही कर रहे हो। कोई आवाज नहीं पहुंचा रहे। और घंटे दा उठे बैठा और मेरा तार भी नहीं करवा सके तू। मेरी आवाज मैं आपका अच्छा आप जरा तशरीफ रखें। नहीं मैं कोई पानी पिलाएं। नहीं मैं ठीक हूं। देखिए मुझे आपके दर्द का एहसास है। केड़ा दर्द मेरे को फिर निकली है। नहीं दर्द काला दर्द है मैं अब तू शेर शुरू पढ़ दर्द उनका तेन नहीं पता है। मुझसे ज्यादा दर्द मैंने पूछ मुझसे ज्यादा ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕੰਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? 8000 ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 9 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ।
عوام زیادہ غصے جے जी जी बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ गुस्से में भी है, तकलीफ में भी है। क्या हल है आपके पास? ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖੋ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਕਰਾਂ जी करें। हेलो हाउ आर यू ओए की है तर्जमाना बेईमाना हैं खामोश। भाई आवाम मेरी बात तो सुने आपका मसला क्या क्या है आसान कर्जे शुरू कर दिए आपके लिए जिन्हें मर्जी कर्जे लवो वापस करो ना करो पाकिस्तान में और टेंशन ना लवो 50 लाख मकान तो देने 50 लाख नहीं एक मकान दे दियो। एक मकान एक मकान। 10 मरले का मकान तेन मिलेगा 10 का नहीं 2 मरले दा। 2 मरले का हाँ जी। यार बहुत गरीब आवाम है ऐसा करी एक कमरे च रह के बाकी रेंट से चला दी नहीं बस शजी छोटा या कर दे दियो। शजी आवाम रिलैक्स हो रही तुझे मेरे नाल रहना है देखो 1 करोड़ नौकरी है 1 करोड़ नहीं जी 1 करोड़ नहीं एक नौकरी बस 30,000 दी नौकरी 30 दी नहीं जी 12,000 ही चाहिए बस 12,000 ठीक है नौकरी। 12,000 हाँ जी। इधर तमाल पा के बखा इधर बांदर बन करके ठहर जा इंसान बन इंसान इंसान आपने रहने कहाँ दिया उन गरीबों को? जी अब हम रिलैक्स हो रही है भी अपना पंगा मैं इन मानों में कह रहा हूँ कि हैं तो ये इंसान, हुक्मरानों ने, आपने भी और आपसे पहले वालों ने भी जो सलूक इनके साथ किया है, आप यकीन जानिए लोग अपने जानवरों के साथ भी वो सलूक नहीं करते हैं जो अवामुन नास के साथ इस मुल्क में सलूक हुआ है। आप मुझे बताएं ना कि इस गुर्बत के दौर में ये जो आपने बिजली बढ़ाई है, ये जो पेट्रोल बढ़ाया है, कैसे गुजारा करेगी अवाम? रिलैक्स कीता है और पखाओ ना ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਝੋ ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ गहरी नींद सोएगा। मेरा अब आपसे भी ये सवाल है, अवाम हाँ जी। ये आपको इतना गुस्सा जो था उस गुस्से को ईंट तो बहरहाल नहीं उठानी चाहिए, अनारकी की तरफ तो नहीं जाना चाहिए, मगर उसको वोट में तब्दील करना चाहिए, अपनी राय में तब्दील करना चाहिए और इस गुस्से को संभाल के रखना चाहिए। ये आप झूठे वादों से मुतासिर क्यों हो जाते हैं? समझ नहीं आती जी। क्या समझ नहीं आती है? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਜੀ? तू बुड्ढी की सुन ले ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ। अगर तू चाहे तो 12-13 बच्चे हो सकते हैं यू कैन डू इट नहीं जी जो साढ़े मसले ने हल कर दो बस। अब आप मैं आपको एक बात बताऊं आपका गुस्सा बजाए जितना गुस्सा कर रहे हैं वो सब बजाए लेकिन उधर मुंह को ना तुम्हारी माँ ने सर नहीं ठीक बनाया तुम्हारा जे तू टाइम ते ना जानती तो सर ठीक ही रहना थी। और दसो थोड़े से की प्लानिंग हो रही है जी साढ़े वजीर भावे वेले ने ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ नहीं तर्जमान कभी वेला नहीं था तो अगर वजीर वेले बैठे हुए हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे, तो आपके पास बताने के लिए क्या है? बहुत कुछ है ए हुणी ਇਹਨੂੰ ਹਸਾਵਾਂ ਉਹ खुश हो जा खुश हर शय सस्ती करन लगे आ आटा घ्यो चीनी दुध ओए हर सब्जी दाला गोश्त भी खाएगा तू ओए बकरे का गोश्त भी खाएगा मुर्गे भी ओए रिलैक्स इजी हो जा सुख दी नींदर सोएगा जी जी तो आता है कि नहीं लो पहले हुकूमत सुलाई अब आवाम को सुला दी मुझे एक बाल याद आ गया यार। देखें बड़ा आदमी कैसे चीज़ों को समझता है, कैसे अवाम के मसाइल को भी समझता है और कैसे हुक्मरानों की पूरी दुनिया में जो हुक्मरानों की चीटिंग्स होती हैं, हुक्मरानों के जो फ्रॉड होते हैं, हुक्मरानों की जो चालाकियां होती हैं, उसको भी कैसे समझता है बड़ा आदमी। इकबाल कहते हैं ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम अगर। बेदार होने का ये मतलब है कि अपने गुस्से को अपने दिल में रखें और फिर वोट की सूरत में सही उम्मीदवार के चुनाव की शक्ल में उसका इजहार करें। ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। अरे वाह और ये साहिरी क्या है? ये वादों की साहिरी है, ये झूठे अहदो पैमान की साहिरी है, ये जो झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं जैसे ये दिखा रहे थे, ये साहिरी है। इन झूठे ख्वाबों को समझना है अब आवाम को। तुसी इस गल नूं छड्डो देखो मेरी गल्लां ने उन सुआता है ओए मैं सुता नहीं मैं जागे होया वां। यस ये हुई ना बात। और हुण मैं तुहाडे वादे च नहीं आना जे शाजी झूठ बोलदे पैसा ने। बहरहाल अगर ये सारे वादे पूरे नहीं होते तो इसको क्या समझा जाएगा? यही तो समझा जाएगा ना। अगर इतनी नौकरियां नहीं होती, इतने घर नहीं बनते, तो इसका मतलब है कि आपने जो कहा या आप उसके अहल नहीं थे, आपको अंदाजा नहीं था, या फिर आपने झूठ बोला है। ये होता है डरपोक आदमी खुल के मुखालफत भी नहीं कर सकता मेरी कीमत ਇਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਏਡੀ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। आपको बताऊं जब बुनियादी तौर पर आपको गाली दे रहे होते जी। हैं तो असल में तो बढ़ाने वाले कोई दे रहे होते हैं ना। ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ
सामने तो मैं मस्कीन हूं ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो भाई अपने महलों में इक्तदार के मजे ले रहे हैं, अवाम में आने की जरूरत क्या है उन्हें। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ 'ਚ ਵੀ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਾਦਮ ਆ, ਨੌਕਰ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਾਦਮ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਦਮ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਕੱਪੜੇ ਚਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ। लो कर लो बात, अपनी पोले खुद ही खोली जा रहा है। ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ, ਇਕਤਦਾਰ ਨਾਲ ਪੂੰਡੀ ਕਰ ਰਹੀ। अच्छा, इस बात का मुझे अफसोस होता है जी। कि इस सिस्टम को जितने अच्छे तरीके से हमारा सियासतदान समझा है, खास तौर पे हुक्मरान में मैं तो समझता हूँ कि वो सारे ही पावरफुल हल्के जो हैं, और अवाम को 70 साल से ये बात समझ नहीं आ रही है कि उन्हें कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जितना तू इमोशनल होता है, मेरा दिल कह रहा है तू कुंडा डालता होगा। कसम उठवा ले। मैं कुंडा तो नहीं डालता, मगर मेरा दिल जो है उस पाकिस्तानी अवाम के लिए खून के आंसू होता है। आपको पता है कि जो लाइन लॉसेस हैं, अरबा रुपए की जो बिजली चोरी है, वो उन बेचारे अवाम पर डाल दी जाती है, उनसे उनकी जेबों में हाथ डालकर वसूल की जाती है, जो बेचारे ऑलरेडी बिल देते हैं। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈਏ? उनके खाते में डाले ना, जिनका काम है बिजली चोरी रोकना, मगर वो कुंडे वालों के साथ मिलकर चोरी करवाते हैं, उनकी तनख्वाहों से वो चोरी वसूल करें। आम आदमी जो ऑलरेडी बिल देता है उस पे क्यों डालते हैं? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਘੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁੱਟ ਭਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾੜਦਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਘੁੱਟ ਮੈਂ ਗੱਡਰ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂ ਤੇ ਡੱਗਾ ਖੋਲ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਐਡਾ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸਾਮ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ। ਆਏ ਕਿੰਨੀ ਨਫਾਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। अरे भाई, अगर गालियों से रंग लाल होते ना, तो सारे के सारे तर्जुमान लाल बबू का होते। अच्छा, मुझे वैसे तर्जुमान साहब ये बताइए, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं मुझे ये बताइए कि ये इत्तलात हैं, मैं तो खैर सच्ची बातें नहीं जानता, मगर इत्तलात हैं कि इमरान खान साहब को जब ये बताया जाता है कि आज फलाना तर्जुमान ने इतनी गालियां दी अपने मुखालिफिन को, अपोजिशन को, तो बड़ा खुश होते हैं। ये दुरुस्त है बात? ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟਡ ਸਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। नहीं, मगर तर्जुमानों की तो सुनते होंगे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। अच्छा, नहीं ये बताइए, और ये जो एक तासुर है कि उनकी तरफ से कहा जाता है तर्जुमानों को कि जाओ और लोगों को, मतलब अपने मुखालफिन जो पंजाबी जिन्होंने कहते हैं कि तुम दो, ये दुरुस्त है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਵਸ ਮਿਲਣ। ਉਸ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, फलाना हो गया, हर चीज़ एक्यूरेट चल रही है। मगर यूं गालियों का तूफान बपा कर दें मुल्क में, ये तो यानी कि देखो, ये हर तर्जुमान यानी कि तर्जुमानों की अपनी पॉलिसी है या इमरान खान साहब की तरफ से आती है? ਖਾਸਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। अच्छा, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ सी ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। अरे आवाम ने इनको दिए तो इनको याद होगी। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇੱਟ। नहीं, ये सारी जो गुफ्तगू हो रही है, ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए हो रही है। ये उर्दू बोल के महंगी गाड़ी में बैठ के निकलेंगे तो के बाद। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मीडिया को डरना चाहिए उस वक्त से, और मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है। जिस तरह से मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है, आप अंदाजा करें ना कि बड़ी बड़ी खबर होती है, बाज़ औक़ात किसी हाउसिंग सोसाइटी वाले के खौफ से डर कर या मुख्तलिफ मफादात के तहत या मुख्तलिफ मसलहतों की वजह से, यानी कि सोशल मीडिया भरा होता है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर नहीं होती है। तो डरना चाहिए मीडिया को भी, और तमाम अरबाब इख्तियार को भी, सियासतदानों को भी, और हर उस पावर को, हर उस इदारे को जिसके पास इख्तियार है, जो पॉलिसी मेकर है। खुदा के लिए आवाम से सच बोलें, वरना ये चौकों चौराहों में लोगों का मुहासबा भी करेंगे और मुहासरा भी करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा हौसला आया तुझ में, पूरी तरह हिम्मत नहीं आई, तभी तो ना मलिक साहब का नाम लिया और ना मलक साहब का नाम लिया। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, जी जी ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। जी जी, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। वाकई ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਨਾ ਜੀ। 9। ਹਾਂਜੀ। ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। देखिए, इसकी इजाजत कभी नहीं दी जा सकती, कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, गुफ्तगू से, दलील से, वोट से अपनी बात करें, तशद्दुद से नहीं। क्यों नहीं?
मैं ना सारे नु मारांगा। 40 तर्जुमान है, मारते मारते 2 साल हो जाते। 2 साल बाद साढ़े कान बना देवी, ये 2 साल कर ले। नहीं हुन करो की करना है आवाम वास्ते। इस मर्तबा जो गुस्सा है ना, मैं आपको बताऊं तर्जुमान साहब, इसे गल्लो जाएगा, खाली गल्ला नल नहीं जाएगा। चंगी भली गल जा रही हुंदी है, विच भाई साहब भी तीली ला दे। पेट्रोल का इस्तेमाल सबसे अच्छा मीडिया करता है। एक मिनट ठहर जाओ, पेट्रोल भी आ जाने आ, मैनू सिर्फ ओनू राम कर लेंदे हो। कोई ठोस मंसूबा है आपके पास? बड़ा बड़े ठोस मंसूबे ने, कोई एक मुल्क च पैसे आ रहे ने, ओए इट थले कर, मुल्क च पैसे आ रहे ने, फिर पैसे आ रहे हुन इट उच्ची नहीं करी दी। सोच तसव्वुर कर, तेरे बच्चे नहाते धोते ने, हैं किथे? साबन ला रहे ने, साबन ला रहे, नवे कपड़े पा रहे ने, नवे कपड़े पा रहे, गड्डियां च फिर रहे ने, गड्डियां ही फिर रहे ने, फ्रूट खान डे ने, फ्रूट खान डे ने, तेरे हालात बदल रहे ने, ये हालात बदल, तू पैंट को टाई ला के फिर रहे हैं, तेरे बाल पूरे आ गए ने, तेरी बीवी तेरी इज्जत कर रही है, हर बैंक तेनू लोन दे रहा है, वो तू मर्सिडीज च फिर रहे है। सोच हाँ, तू 130 ते मर्सिडीज चला रहा है, तो नींदर आ रही, तेरी अखा बंद हो रही है ने, तू इट थले रखी है, हुण तू सौ जा, अबदी नींद सौ जा। ठोस की बात है। और ये जो आपने आखिर में कहा ना, आपका तो बस नहीं चलता कि अवाम को वाकई अबदी नींद सुला दें। यहाँ पे वो शेर बनता है, सरहाने आवाम की आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गई है। वो चुक चुक ऐसा करो, टुक टुक का बच्चा उठी ना जाए। क्या जी साढ़े 2 साल कढ़ा दो। अब मैंने ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੈ, अब मैंने थले ले आओ। तेन मैं थले लेना है और तेन लग समझ जानी। नाज़रीन, जो भी इख्तलाफ गवर्नमेंट से होता है, हर गवर्नमेंट से मुख्तलिफ इख्तलाफात जो है रहते हैं, उस इख्तलाफात को, गुस्से को, उस नाइंसाफ़ी को, उस तज़लील को याद रखना चाहिए और फिर वोट की सूरत में अपने गुस्से का इजहार जो है वो करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।